हाँ जल्दी करवाएंगे। प्रकाश पाटिल सर, रविया जल्दी, थोड़ा सा चेंज हो पाएगा। करा दीजिए। सभी को नमस्कार। I request all the participants to be seated and mute your mobile. फिर से नमस्कार करते हुए ICAR IHR बेंगलुरु में आज का दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी की किसानों, छात्रों एवं वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। A very good morning to all the ladies and gentlemen present here. It's indeed going to be a very great day at ICAR IHR today. I welcome everyone wholeheartedly for the interaction program of Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare and Minister of Tribal Affairs with farmers, students and scientists at ICAR IHR Bengaluru. Today, we are so fortunate to have the presence of Sri Arjun Munda ji, Union Minister, with us. He was the great and legendary Chief Minister of Jharkhand State, and being a Union Minister for Tribal Affairs, he is so successful minister in implementing plethora of new initiatives for the tribal development in the country. Keeping initiatives apart, he was so proactive that he himself proved as a walking brand ambassador for the promotion of archery in national and international level. And coming to the folk arts, he himself can play the flute and almost all the tribal instruments, which shows the love and emotion towards the culture. He is a multilinguist, multi-talented Chief Minister, Union Minister, and a great leader of India. We welcome you, sir, to this program. So now it's our fortune to have such an enthusiastic, experienced administrator as a Union Minister of Agriculture. As we all know, agriculture sector is the most strongest sector because almost 47% of the workforce belongs to this sector. And any improvement in this sector will positively impact on the lives of this workforce where most of the people are under below poverty line. So we are thankful and grateful to you, sir, for being here to have the interaction with us and motivate us. As the tagline of Karnataka says, Karnataka is one state with the many worlds. We welcome you to this world, to the city of Silicon Valley, Garden City, and city of Vigyan and technologies and many more. And mainly to the institute ICAR IHR, which is number one in the country among the ICAR research institutes. A big welcome to you, sir. तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। पहले इस कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए हमारे PhD छात्रों सुलोचना और सपना को स्वागत करती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम्। नवकुञ्जलोचन कंज मुखकर कंज पद कंजारुणम्। श्रीराम श्रीराम कंदत्वा गणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक
सुतावरम् श्रीराम श्रीराम स्थिरमुकुटकुण्डल तिलकचारु उदाराङ्गविभूषणम् आजानुभुज शरचापधर सङ्ग्रामजितकर दूषणम् श्रीराम श्रीराम इति वदति तुलसीदास शङ्कर शेष मुनिमनरञ्जनम् मम हृदय कञ्ज निवास कुरु कामादिफलदल गञ्जनम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर कञ्जपद कञ्जारुणम् श्रीराम श्रीराम। धन्यवाद। Thank you for spreading the melodious bliss and positive vibes. अब मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन. I request all the dignitaries on the dais to light the lamp and ignite the rays of positive hope and future. सभी को धन्यवाद। अभी मैं प्रोफेसर संजय कुमार सिंह, निदेशक ICAR IAHR से निवेदन करती हूँ कि वे सभी को स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर रम्या। सभी को गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत वंदन। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के केंद्रीय जनजाति मामले एवं केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री माननीय श्री अरुण मुंडा जी को मैं संस्थान के भ्रमण एवं उसके पूरे कार्यक्रम को देखने के लिए आने के लिए मैं बहुत बहुत बधाई प्रदान करता हूं कि उन्होंने आया और हम सबको पूरे क्रियाकलाप को देखा, रिसर्च को देखा, फील्ड्स को देखा, नर्सरी को देखा, प्रदर्शनी को देखा और कई व्यवस्थाओं को उन्होंने उद्घाटन भी किया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और चाहता हूं कि वो बार बार आए और हमें अपने आशीर्वचन से अनुगत करते रहें। बहुत ही अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह संस्थान, सर आप पहली बार पधारे हैं और जो क्रियाकलाप आपने देखा बहुत ही जल्दी में आपको देखना पड़ा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि हमारा संस्थान काफी बड़ा है और काफी फल, सब्जियों, फूल, पुष्प, मशरूम, हनी इत्यादि पे काम करता है। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे पूरे जो हमारे सिस्टर इंस्टीट्यूट है पूरे बैंगलोर में, ICAR इंस्टीट्यूट से डॉक्टर सुशील को मैं देख पा रहा हूं, कोई और भी अन्य अधिकारीगण हैं जो हमारे संस्थान के इस कार्यक्रम में आए हैं, उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि हमारे किसान भाई
बहन जो बहुत बहुत बड़े तादाद में इस बार आए हैं मंत्री जी को देखने के लिए और इस सभागार में है, और उनकी उपस्थिति ये बताती है कि हमारे मंत्री साहब कितने उनमें मैं कहूं पॉपुलर हैं और उनको देखना चाहते थे वो कि क्या उनके विचार हैं और उनको सुनना चाहते हैं। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आप लोग का, अपने इतने बड़े नंबर में आए हैं। मैं बहुत खुश हूं कि आज मेरी पूरी अर्ता फैमिली जो वैज्ञानिक है, स्टाफ है, एडमिनिस्ट्रेशन है, सारे जो है यहाँ उपस्थित हैं आपको सुनने के लिए सर, और वो भी दिखाना चाहते हैं कि हम इस संस्थान में क्या कर रहे हैं। जैसा कि आपने प्रदर्शनी में देखा, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन कम क्षणों में मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं जो इस सभागार में उपस्थित हैं, और मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे मुख्यमंत्री को खड़े होकर एक बहुत बड़ी आप ये कहूं कि मैं उनको अभिनंदन दें। ठीक है, धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हुए अब केंद्रीय उपयोजनाओं अर्थात जनजातियों में IIHR के योगदान पर प्रस्तुति करने के लिए डॉक्टर अनिल के नायर प्रधान वैज्ञानिक से अनुरोध करती हूँ। स्लाइड्स प्लीज। माननीय केंद्रीय मंत्री जी, हमारे विशिष्ट अतिथिगण और इस सभागार में उपस्थित देवियों सज्जनों, मुझे एक अवसर दिया गया है कि जो संस्थान की जो उपलब्धियां हैं उसको मैं संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूं। मैं चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके जो मेरे को जो समय आवंटित किया गया उसके अंदर मैं आपको ये प्रस्तुतिकरण करूं। सर, हमारे संस्थान की स्थापना जो है सितंबर सन 1967 में की गई थी और हमारा जो क्षेत्रफल है 663 एकड़ का है। हमारे 2 केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र हैं जो कि भुवनेश्वर यानी कि उड़ीसा में स्थित है, जहाँ पे 100 एकड़ जमीन है, और केंद्रीय बागवानी परीक्षण केंद्र हमारे कोडगु डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है जो कि चिटल्ले में स्थित है। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो कि गोनीगप्पाल और हिरेहल्ली दोनों ही हमारे कर्नाटक में स्थित है। मगर इनके जो कार्य क्षेत्र हैं, जो उनकी विस्तार की गतिविधियां हैं, जो हम खासकर हमारे छोटे और जो सीमांत कृषक हैं उनके ऊपर हमारा ध्यान केंद्रित रहता है। और संस्थान में कुल 8 संभाग हैं जिसमें कि फसलों से संबंधित फल, सब्जी और पुष्प हैं, और साथ ही साथ उसमें हमारे औषधीय फसलें भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा मूलभूत विज्ञान जिसमें कि पादप कार्य की जैव रसायन और जैव प्रौद्योगिकी पे काम किया जाता है, फसल संरक्षण जिसमें पादप रोग और कीट विज्ञान दोनों सम्मिलित है, प्राकृतिक संसाधन जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो पानी और हमारे जो पोषक तत्व हैं उससे संबंधित, और सामाजिक विज्ञान और प्रशिक्षण जिसकी जिम्मेदारी बहुत है। जो भी हमारे तकनीक है, प्रौद्योगिकी है, उसको किसानों तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके संबंध में जितने भी विशेष कार्यक्रम होते हैं उसको सरकार, जो केंद्रीय सरकार की स्कीम्स होते हैं उसको कैसे यहाँ पे लागू किया जाए, इसके ऊपर विशेष ध्यान देती है। संस्थान में हम लोग 54 बागवानी फसलों पर शोध कार्य करते हैं जिसमें कि 13 फल फसलें, 26 सब्जी फसलें और 10 फूलों की और 5 औषधि फसलें सम्मिलित है। नेक्स्ट प्लीज। जो संस्थान के अधिदेश हैं जो उसमें कि 4 हमारे मुख्य हैं, उसमें बागवानी फसलों की टिकाऊ उत्पादकता, गुणवत्ता व उपयोग को बढ़ाने के लिए मौलिक और कार्यनीति परक और व्यवहारिक अनुसंधान पर कार्य करना, बागवानी अनुवांशिक संसाधनों और वैज्ञानिक सूचना का भंडार गृह, ये एक हमारा एक मेन भंडार है, और इसमें हमारी जैविक संपदा है और उद्देश्य भी हमारे 6 हैं जिसके ऊपर हम कार्य कर रहे हैं। उसके संबंधित जो सूचनाएं हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे। जो हमारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, हमारे पास जो जन्म प्लाज्मा जनन द्रव्य है जिसके द्वारा हम विभिन्न वैरायटीज का विकास करते हैं जो कि उच्च उत्पादकता वाली हो, गुणवत्ता वाली हो। उसमें 12,566 हम लोगों ने पिछले साल 2022 तक हम लोगों ने एकत्रित की है, और इसको संस्थान जो है बागवानी फसलों के सक्रिय जन्म प्लाज्मा का एक भंडार भी है। किसानों को हम लोग अपने वैरायटीज के अलावा जो किसानों की खुद की वैरायटी उसको भी हम लोग प्रमोट करते हैं। कटहल में आपने देखा है कि सिद्धू जो कि SS परमेश्वर तुमकुर के हैं, उसको हम लोग ने PPRA के तहत, PPVFRA के तहत हमने रजिस्ट्रेशन कराया है। शंकरा जो वो भी एक कटहल की वैरायटी है,
और इसके अलावा इमली की जो वैरायटी है लक्ष्मणा, जो कि किसान के नाम पे ही हम लोगों ने उसको संरक्षित किया है, किसानों को हम लोगों ने इसमें गाइड किया है। और इसकी मुख्य विशेषता यह है कि किसान ही इसके आनुवंशिक विविधता के संरक्षक हैं, और जो आय जो किसान को मिलते हैं फिर 75% किसानों के पास जाती है और संस्थान को 25% तक साझा किया जाता है। इसमें जो विशेष बात मैं आपको बताना चाहता हूं महोदय, कि 2 साल के भीतर ही हमारे जो परमेश्वर जी है उन्होंने 22 लाख रुपए कमाए हैं और देश में 28,000 किसानों को 1 लाख पौधे वितरित किए गए, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो हमारे मुख्य फसलें हैं, हमारे वैसे तो बहुत सारी किस्में हैं, मगर उसमें से जो खास आम की 2 संकर किस्में अरका सुप्रभात और अरका उदय, हमने हाल ही के दिनों में उसका विमोचन किया है, जैसे कि जो कि देर से पकने वाली किस्में जुलाई के महीने में पकती है, जिससे कि किसानों को आदाय ज्यादा प्राप्त होता है। अमरूद में अरका पूर्णा और अरका अश्मी काफी प्रचलित है। अरका सहन सीताफल, जो कि हमारे आर्द्र जलवायु और गर्म जलवायु के लिए उपयोगी फसल है। अरका सुप्रीम, एवोकाडो, अरका प्रभात, पपीता। उसी प्रकार हमारी सब्जियों में अरका रक्षक और अरका अभेद काफी महत्वपूर्ण है, जिसका कि पिछले 2 वर्षों में 1200 किलोग्राम संकर बीज वितरित किया गया था। और ये जो वैरायटी है दोनों हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में भी काफी पॉपुलर, काफी लोकप्रिय हो रही है और किसानों की तरफ से इसके बीज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है। मिर्च की जो हमारी जो मुख्य समस्या है वो पर्णकुंचन विषाणु रोग है, लीफ कर्ल वायरस। इसके लिए हम लोगों ने 5 प्रतिरोधी किस्मों का विकास किया है। अरका तेजस्वी, अरका सानवी, अरका तानवी और अरका गगन। इसके और तुरई की किस्में अरका प्रसन्न, अरका और अरका विक्रम, फ्रेंच बीन, अरका हमारी जो है अरका अर्जुन, जो कि वायरस विरोधी प्रतिरोधी है। फूलों की बात करें तो अरका शुभा, अरका विभा, अरका अभी और अरका भानु भी हमारी लोकप्रिय वैरायटी है, जो कि उच्च कैरोनोइड से युक्त है। और औषधीय फसलों में वेलवेट बीन, जिसे किगवांच के रूप में भी जाना जाता है, इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। और फसल चक्र में सूत्रकृमि प्रबंधन के लिए भी इसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसके अलावा उच्च एल्डोपा, जो कि 4 से 4.5% पाया जाता है, जिसको कि पार्किंसन डिसीज के लिए प्रयोग किया जाता है। मशरूम का जैसे कि आपने भ्रमण किया, आपने देखा है कि हमारी जो नई प्रजातियां शिताके, इसके उत्पादन तकनीक का मानीकरण किया गया है। विशेष जोर जो हम दे रहे हैं, ग्रामीण महिलाओं और बेरोजगार युवाओं को इसमें प्रशिक्षण दिया जाता है। मिनिमम 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिवर्ष दिया जाता है। और जो पान उत्पादन, जो उसके बीज है, उससे लगभग 40 टन प्रतिवर्ष उत्पादित करके हमें 30 लाख रुपए की इनकम प्राप्त होती है। सस्योत्तर प्रौद्योगिकियां, जो कि हमारे पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी उसमें से मुख्य है। हमारे पास प्रोबायोटिक बे है, फूड बाय टेक्नोलॉजी है, कटल से उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका जैकोलेट, उसके चॉकलेट बनाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त उच्च आर्द्रता भंडारण बक्से, जिससे कि हम अपने उत्पाद को काफी दूर तक इसका परिवहन कर सकते हैं। बागवानी फसलों में जैसे कि मालूम है कि सब्जियों का नर्सरी के लिए हमारे पास विशेष प्रकार के मशीन हम लोगों ने तैयार की है, जो कि अपने स्वचालित हैं। और जो अदरवाइज जो हमको बाहर से आयात कराना पड़ता है, ये कम दामों पर तैयार किए हुए हैं। हमारे पास सब्जी नर्सरी स्वचालित प्रोडेवलपर है, मीडिया की सफाई, मिश्रण और भरने की जो क्षमता वाली एक मशीन है, और ग्राफ्टिंग एक मशीन भी हम लोगों ने तैयार किया, जिसकी लागत कम है। प्रत्येक फसल के लिए हमारे पास छोटे छोटे यंत्र हैं, जिसको कि हम शुरू से लेकर आखिरी तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मानव चालित प्याज बीजक है, पशु चालित है, ट्रैक्टर चालित है, और इसके साथ ग्रेडर भी है। फसल सुरक्षा से संबंधित भी हमारे पास बहुत सारी तकनीक्स हैं। संरक्षित खेती में मधुमक्खी सहायक परागण है। डायमंड बैक मॉक के लिए पर्यावरण अनुकूल IPM तकनीक है। इसी के साथ पर्यावरण अनुकूल पैराफेरोमोन फ्रूट फ्लाई है, जो कि हमारे आम, अमरूद, सीताफल और नींबू जैसे फसलों में इसका उपयोग किया जा सकता है। फसल पोषण प्रौद्योगिकी में पंप जो हमारे जो स्पेशल है, अरका बनाना स्पेशल है, मैंगो स्पेशल, सिट्रस स्पेशल, ये काफी मात्रा में हम किसानों को भेजते आए हैं और लगातार इसकी मांग भी बढ़ती जा रही है। इसी प्रकार जैविक खेती के लिए अरका माइक्रोबियल कंसोर्शियम, अरका डिकम्पोजर, एक्टिनोप्लस, अरका केंद्रित कोकोपीट, माइक्रोवेव सब हमारे पास उपलब्ध है। 2014 से 2022 के बीच में करीब 1465 जो है हम लोगों ने क्विंटल बीज का उत्पादन किया है। और इसी के साथ 66 लाख के आसपास हम लोगों ने जो रोपण सामग्री है उसको किसानों के बीच में वितरित किया, क्योंकि हमें बागवानी विस्तार को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण बीज और रोपण उत्पादन भी आवश्यक है। नई पहल के तहत हमने बीज पोर्टल के बारे में महोदय आपको हमने पहले ही बता दिया। संरक्षित खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र और साथ ही साथ कमलम की खेती के लिए भी उत्कृष्टता केंद्र जो हमारे संस्थान में स्थापित किया गया है। वर्टिकल फार्मिंग जो है एक भविष्य की जो एक मांग है, उसी प्रकार से डिजिटल हॉर्टिकल्चर हमें समय के साथ चलना पड़ेगा, इसलिए डिजिटल हॉर्टिकल्चर के ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जैविक खेती के लिए माइक्रोबियल कीटनाशक और जैव गुणों की गहनता, फार्म मशीनरी और प्रसंस्करण उपकरण, जिससे कि हम मानव
जो ऊर्जा है उसको संचित कर सके। शहद परीक्षण प्रयोगशाला की भी स्थापना की जा रही है। राष्ट्रीय बागवानी मेले हम नियमित रूप से सन 2016 से 17 से करते आ रहे हैं। विशेष योजनाएं जो हमारी SC, SP, TSP और NHE है उसके ऊपर हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिससे कि लघु और हमारे सीमांत किसानों तक हम पहुंच सके और उनकी जो आजीविका है उसको बढ़ाया जा सके। मोबाइल ऐप्स हमने तैयार किए जिससे कि किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे जो प्रौद्योगिकी है जिसमें 30,050 करोड़ का योगदान हम प्रतिवर्ष देते आ रहे हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से डॉगेज रूट स्टॉक है, अर्का प्रज्वल, अर्का रक्षा के हमारे 15 प्रौद्योगिकी है, जिससे कि हर साल हमें काफी राष्ट्र को काफी मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा जो हमारे अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना के माध्यम से बहुत सारी तकनीकें हैं जिनको कि जिसको कि झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन किया गया है और झारखंड के लिए आउटरीच गतिविधियां 5 जिलों में की गई थी और उसमें विभिन्न हमारे ग्राम शामिल हैं और मानव संसाधन विकास के अंतर्गत करीब 6,000 से अधिक किसानों को प्रशिक्षण दिया गया है। झारखंड में पपीता उत्पादन की मूल श्रृंखला के अंदर श्रीमती एमलन द्वारा पपीता नर्सरी स्थापित की गई और उनको 1 लाख की अतिरिक्त आय प्राप्त होती है और उसी प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया और उत्पादन और विपणन के लिए किसानों को FPO के साथ हमारा जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं कि जो श्रीमती एमलन है उनको झारखंड के माननीय राज्यपाल और माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। विस्तार गतिविधियां हम लोगों ने पिछले 8 सालों में 829 गतिविधियां हम लोगों ने की, जिसमें कि इंटरनेशनल और नेशनल सिंपोजियम हम लोग ने किए हैं। आप देखेंगे कि हमारे जो उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों के लिए विस्तार कार्यकर्ताओं और किसानों के लिए समशा विकास कार्यक्रम में उत्पादों को बीज एवं रोपण सामग्री का वितरण किया गया और बहुत सारे प्रदर्शन करीब 3,000 ग्रो बैग्स दिए गए और 5,000 और जैव कीटनाशक भी प्रारंभ किया। आप देख सकते हैं त्रिपुरा में तिलकपुर में किसानों को आदान वितरण किया गया, मिर्च की खेती पौधे कैसे लगाए जाते हैं और उसी प्रकार से जो क्षमता विकास कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। मिजोरम के जनजातीय किसान जो है पहले टमाटर के आयात करते थे, वो निर्यातक बन चुके हैं। उसी प्रकार नेट हाउस में खीरे भी उगाए जा रहे हैं और उससे संबंधित एक जो सक्सेस स्टोरी हमने हाल ही के दिनों में NES से संबंधित जो सक्सेस स्टोरी उससे रिलेटेड एक पुस्तक का भी हम लोग ने विमोचन किया है। जनजातीय योजनाओं के अंतर्गत हम लोग ने देश के 10 बड़े राज्यों में और 8 छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में अपनी गतिविधियों को तेज किया गया है। इसके अंतर्गत करीब 1600 जो हमने किचन गार्डन जो सब्जी किट है उसको वितरित किया है और रजनीगंधा बल्ब करीब 12,200 के आसपास किलोग्राम के आसपास हम लोग ने। आप देख सकते हैं कि हमारे जो मानचित्र है उसमें हम लोग किन किन राज्यों को हम लोग ने इसके अंदर अंतर्गत कवर किया है। अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत हमने करीब 23 राज्यों में अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया है और उसके अंदर हमारे IHR की 44 प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया है और इससे लाभार्थियों की संख्या लगभग 38,000 के आसपास है। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम और गुमला में हम लोग ने अपने 6 जो वैरायटीज है उसका गांवों की संख्या विभिन्न गांवों में उसका प्रदर्शन किया है और लाभार्थियों की संख्या करीब 500 के आसपास है। आप देख सकते हैं कि हम इसी ग्रामों में हम लोग ने कद्दू, पालक, धनिया, मूली, अनाज, सब्जी और साथ ही साथ मशरूम के स्पॉन का भी हम लोग ने करीब 35 गांव में वितरित किया, जिससे कि 350 कृषक लाभार्थी हुए। किसानों के चेहरे पर जो प्रसन्नता इसी से पता चलता है कि हमारे जो कार्यक्रम है वो उनको पसंद किए जा रहे हैं और उनकी सफलता की गाथा को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। पोर्टल और मोबाइल ऐप के माध्यम से हम लोग बीज जो है वो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसानों की मांग को पूरा करते हैं। इसके अलावा नियमित रूप से हम लोग राष्ट्रीय बागवानी मेले यहाँ पे प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं और जिसमें कि हम जो प्रगतिशील किसान हैं उनको हम लोग अवार्ड्स भी प्रदान करते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षा में आपको मालूम है कि हम लोग IRI के आउटरीच स्टेशन है और सन 2016-17 से हम लोग इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। जो आपको जानकर खुशी होगी कि शुरू के जो प्रथम 2 वर्ष में थे, जो हमारे बेस्ट स्टूडेंट्स थे वो दोनों ही छात्राएं जो थी वो झारखंड राज्य की थी और उन्होंने स्वर्ण पदक पुरस्कार प्राप्त किया था और करीब 49 जो है हम लोग स्टूडेंट्स लोगों को विभिन्न प्रकार की जो छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं। झारखंड में सर जो बागवानी की संभावना है उसमें फसल उत्पादन में हाइड्रोपोनिक्स, मशरूम उत्पादन, हाईटेक बागवानी फसल उत्पादन, ग्रीन हाउस सब्जी उत्पादन और अमरूद, बेल, बेर, सेब, आंवला, महुआ जैसी फसलों का उत्पादन कर सकते हैं और जो भी वहाँ पे बागवानी से संबंधित कार्यक्रम है उसको हम एक मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने सीताफल और पूना जो अंजीर है और डियाना जो अंजीर की वैरायटी है इसका वहाँ पे संस्तुति दी है कि उसको उगाया जा सकता है। उसी प्रकार जामुन की जो किस्म है कोंकण बहादुरी और धूप दाल उसी और जो करौंदा की किस्में हैं कोंकण बोल्ड और ठाकुरवाड़ी लोकल, इसका भी हम लोग वहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं।
हमारे वैज्ञानिकों ने बताया कि वर्षा आश्रित क्षेत्र के लिए आम आधारित जो आईएफएस मॉडल है, जो हम लोगों ने यहाँ पे उसका मूल्यांकन किया है और उसको एक प्रौद्योगिकी के रूप में प्रस्तुत किया है। इसका भी हम झारखंड के विभिन्न क्षेत्रों में इन जो प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो अमरूद से संबंधित वर्षा आधारित है, जैसे कि आम में किया गया, उस प्रकार से इसमें भी हम लोग कर सकते हैं और वहां पे जो है किसानों के जो उनका कृषि है उसको लाभदायक बना सकता है। झारखंड के लिए विशेष रूप से जो हमारी जो सब्जियों की किस्में, अर्का रक्षक, अर्का श्वेता और अर्का आनंद जो है, टमाटर, मिर्च और जो बैंगन की किस्में हैं, इसको वहां पे प्रदर्शन के द्वारा उसको किसानों के बीच में लोकप्रिय बनाया जा सकता है। अर्का मंगला जो लंबी लोबिया है और अर्का प्रधान जो सेम की किस्में और अर्का प्रिया मटर की किस्में, इसको भी हम वहां पे उगाकर वहां के किसानों के लिए एक लाभकारी आमदनी के रूप में बढ़ा सकते हैं। अर्का विक्रम जो है हमारा तुरई की किस्म है, अर्का भरत और अर्का नीलाचल गौरव जो कि स्पाइन गोट की किस्म है, इसको उगा के भी हम किसानों के जो है इसको उगाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जिससे कि उनकी जो आमदनी है उसको बढ़ाई जा सके। धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for the beautiful presentation on the ICAR IHR contribution to central schemes. अगला कार्यक्रम मुख्य अतिथि का सम्मान। I request Director IHR to felicitate Honorable Chief Guest. Thank you. Moving on to the next segment, I request Honorable Minister and dignitaries on the dais for the exchange of MOUs, release of publications, and for input distribution to the farmers. Firstly, under MOU exchange, I request Mr. G.S. Babu Siddhakumar, President of KEFA, Karnataka Exotic Fruits Farmers Association, to come on to the dais and exchange the MOU for technical support and for technology transfer and capacity building with respect to IHR technologies. I also request Dr. Karunakaran sir to come on to the dais, who is the mentor. Nextly, I call upon Mr. M. Srinivas Rao, Director Deccan Exotics, to exchange the MOU for technical support for technology transfer and capacity building with IIHR. Basically, Deccan Exotic India is a FPO exchanging the MOU with IIHR under the guidance of Dr. Karunakaran sir. Thank you. Now I invite Mr. Rishabh Jain, CEO of Green Malt Ganga Pack Private Limited, offsite incubative for eco-friendly packaging for fruits under mentorship of Dr. Bhuvaneshwari, Division of Post-Harvest Technology. And I also invite Bestart CEO, Dr. Dhananjaya, to come onto the dais for the exchange of the MOU. Thank you. Now I invite Dr. Vasudevan and Dr.
Selvarani and Dr. Pandiraj from Kalasalingam Academy of Research and Education, Tamil Nadu for Students Training and Postgraduate Research MOU. Under the mentorship of Dr. Shankaran and Chairman of PG Education Cell, Dr. Venugopal. I invite both of them to come onto the dais. Thank you for everyone for the exchange of MOU. Now moving on to the release of publications. Now we are releasing 6 publications today. That is Technical Bulletin on Production Technology of Edible and Medicinal Mushrooms in English and Kannada compiled and edited by Meera Pandey, Veena S.S., Dr. Chandrasekhara, Senthil Kumar and Dr. R.B. Tiwari. And next, Technical Bulletin on Hybrid Seed Production Techniques in Okra, compiled and edited by Dr. Pichai Muthu. And the book on Improved Technologies for Early and Off-Season Cultivation of Vegetables, Fruit Crops for Farmers of Jharkhand State, compiled and edited by Dr. Atikullah, Dr. Ramya, and Ms. Navnita. And one more, Production Technology of Cucumber in English and Kannada. It is given by Dr. Pichai Muthu and Dr. Vivek Hegde in both the languages, English and Kannada. Thank you, dignitaries, for the release of the publications. Now, for the input distribution program, I request chief guest to distribute these inputs to the farmers. Yes, sir. Yes. ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಿಂದ ಈಗ ರೈತ ಬಾಂಧವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿವಿಧ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರೀ ಮನೀಶ್ ನೀರ್ಜಾ, ಶ್ರೀ ಪವನ್, ಶ್ರೀ ಯಶವಂತ್, ಶ್ರೀ ರುದ್ರಮಣಿ, ಇವರು ಕೆಇಎಫ್ಎ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಿಸ್ಟರ್ GS ಬಾಬು ಸಿದ್ದಕುಮಾರ್ ಅವರ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಈ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಬಾಬು ಸಿದ್ದಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. They're receiving the inputs for smart farming kits, sensor-based irrigation system for dragon fruit under the project off-season production techniques in the dragon fruit funded by RKVY Raftar Karnataka under the leadership of Dr. Karunakaran. And for your kind notice, each farmer is given inputs worth of rupees 1 lakh under this RKVY projects. And another batch of farmers for off-season production kit for dragon fruit electrical items, Shri Paramashiva, Shri Sunil Devaraju, Shri Tippeswamy, Shri Raghu. Second batch. Second batch. Okay. Yes. Now, under this central scheme SCSP and TSP program, we have few farmers for the input distribution. Shri Bommalingappa from Hosahalli, Shri Jayaramappa from Hosaturga, Shri Puttaranga Soliga tribe from BR Hills, Shri Ashwatappa from Chinnalli of Chikbalapur district, and Mr. Shri Limbappa Adavi from Koppal. Today we are distributing the inputs such as Arca Vegetable Special, Arca Microbial Consortium, Arca Savi Rose plants to them, all the farmers under SCSP and TSP program. Inputs are distributed under the chairmanship of Dr. Senthil Kumar and Dr. Shankar V.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್. ಎಲ್ಲ ರೈತ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. Coming to the next program for which we are eagerly waiting, that is addressed by the chief guest Shri Arjun Munda ji, Honorable Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Government of India, Delhi. बड़े सम्मान और विनम्र अनुरोध के साथ मैं आपको सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ. थैंक यू, धन्यवाद. आईसीआर के इस भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान में आज कृषक वैज्ञानिक संवाद में इस संस्थान के डायरेक्टर डॉक्टर एस.के. सिंह, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर प्रकाश पाटिल जी, नोडल ऑफिसर डॉक्टर पी.वी.आर. रेड्डी और यहाँ उपस्थित इस सभागार में भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान के सभी वैज्ञानिकों, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी कृषक, सभी फार्मर्स और ऐसे उन्नत किसान जो इस समय साइंटिफिक तरीके से कमर्शियल वे में कृषि एवं बागवानी को और खासकर जो इसके पहले देश में विदेशों से आने वाले ऐसे बहुत सारे फल जिसका उत्पादन अब इस देश में और खासकर इस संस्थान के तत्वाधान में हो रहा है, वैसे जुड़े हुए समस्त उन्नत कृषकगण, भाइयों एवं बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज मुझे इस परिसर में इस संस्थान के निदेशक के साथ आप सभी वैज्ञानिकों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां उपलब्ध हुई, जहां मैंने प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ों को देखा जो यह संस्थान कर रहा है। प्रेजेंटेशन में आपको बताया गया कि 1967 में यह संस्थान प्रारंभ हुआ और लगातार इस संस्थान के माध्यम से बागवानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर में रिसर्च का काम हो रहा है। फार्मर्स के साथ जुड़ करके कैसे उत्पादन को, प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, उसके लिए काम हो रहा है। किसानों को बेहतर सुविधाएं मिले, इन सारे ऐसे सभी उपायों के बारे में संस्थान काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले इस संस्थान के डायरेक्टर, यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के साइंटिस्ट और आप सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं परिसर के विभिन्न स्थानों से होते हुए जो गतिविधियां चल रही है उसको देखते हुए, जहां पौधशाला है यानी जहां नर्सरी है और जहां के बारे में बताया गया कि यहाँ पर
राज्य भर से और बहुत सारे स्थानों से लोग आते हैं ट्रॉली लेकर खुद से। वैसे सारे पौधों का स्वयं से टोली में रखकर लगभग 2-2.5 करोड़ से अधिक उसके माध्यम से इस संस्थान सस्टेनेबल तरीके से जहां किसानों को उपलब्ध कर रहा है, संस्थान को भी आमदनी हो रही है। वो सारी चीजें देखते हुए जो ST/SC कंपोनेंट है, एग्जीबिशन लगा हुआ है, जो उपलब्धियां संस्थान ने हासिल किया है, कृषक को सुविधाएं दी गई है, उसके साथ साथ अभी प्रेजेंटेशन में हमने देखा, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबों से मिल करके मुझे बहुत खुशी है और मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, बल्कि मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ये हमारा देश है, ये हमारी मिट्टी है, ये हमारा जन्म स्थान है। हमारी पाँव हमेशा धरती में ही होती है, तो हमें धरती में रह करके धरती के लिए ही सोचना चाहिए। और इसलिए जिस क्षेत्र के लिए यह संस्थान खुली है, इसका अधिक से अधिक लाभ लेने का और इस संस्थान को लाभ देने के लिए जितने प्रयत्न होना चाहिए वो पूरी तरीके से आगे भी संभावना है, जिसको हम इस देश में इस क्षेत्र को आगे बढ़ा करके बेहतर कर सकते हैं। बागवानी का जो कंट्रीब्यूशन है 33% के लगभग है एग्रीकल्चर सेक्टर में, उसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं और उसमें प्रचुर संभावना है। इसके माध्यम से जो बाजार में हमारा स्थान है वो भी बहुत बड़े स्तर पर हम बनाए हैं, लेकिन और भी संभावना है। जैसे अभी हम यहाँ के एक प्रबुद्ध किसान से जब हम मिल रहे थे, ड्रैगन फ्रूट के ग्रोवर हैं, इसके अलावा भी कई तरह के जो उत्पादन कर रहे हैं, कि हमें और ज़्यादा उत्पादन की भी और अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि उसका बाजार भी अच्छे ढंग से हो, न केवल डोमेस्टिक मार्केट में बल्कि इसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव तरीके से हम दुनिया के बाजारों में भी और अधिक बेहतर ढंग से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। मुझे बताया गया कि वियतनाम से यहाँ पे जो ड्रैगन फ्रूट कभी कभी सीजन के समय में बहुत इतना ज़्यादा इंपोर्ट हो जाता है और उसके वजह से मार्केट यहाँ का, लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत की खपत को अगर लोगों तक बढ़ाने में कामयाब हो तो इसके बावजूद भी हमारा बाजार बना रहेगा। 2022-23 तक हमने लगभग इस क्षेत्र में 350 मिलियन टन का उत्पादन का लक्ष्य पूरा किया है, जो इनिशियल स्टेज में जब पहली बार बजट बना था देश का या 5 इयर्स प्लान बना था, उस समय की जो पोजीशन थी आज की पोजीशन से हमारी काफ़ी सुधार हुए। लेकिन देश की आबादी भी बढ़ी है। उस समय की आबादी, उस समय का पॉपुलेशन और आज के पॉपुलेशन में बहुत अंतर है। देश का भी पॉपुलेशन बढ़ा, दुनिया का भी पॉपुलेशन बढ़ रहा है और खाद्य सबके लिए आवश्यक है। और हॉर्टिकल्चर सेक्टर एक नया तरीके से लोगों को अवसर देता है अपने इनकम को बढ़ाने का। माननीय प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को, और जैसे हमारे एक प्रबुद्ध किसान ने ही बताया कि जब यह गुजरात से महाराष्ट्र की ओर, महाराष्ट्र से
कर्नाटका की ओर इसका उत्पादन बढ़ा। अब ये कई राज्य इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, इसका उत्पादन बढ़ा रहे हैं, इस पे लोग एड ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। तो इस तरीके से नए नए जो दुनिया के अन्य फलों को भी हम भारत में कैसे ज्यादा विकसित कर सके, उत्पादन कर सके, उसके लिए बाजार ढूंढ सके, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। जलवायु परिवर्तन भी हम कृषि क्षेत्र की सक्रियता से रोक सकते हैं। आज हमारी अवेयरनेस बढ़ी है, इसलिए ज्यादा जरूरी है कि जो ऐसे कीट हैं, बीमारियां हैं, इस तरह के बहुत सारे चीजें जो किसानों को जरूरी है। यह ऐसा नहीं है कि हमारे किसान जो आदिकाल से, ये यदि हम देखें तो ये उन्नत तरीके से बढ़ने का तरीका हमारा 1000 साल का हो सकता है, लेकिन कृषक के नाते तो हम 50,000 साल से करते रहे हैं। ऐसा नहीं है, जब से सभ्यता बढ़ी कि अब हम फल फूल जंगल से नहीं लेके बल्कि हम अपने भी फसल उगा सकते हैं। नदी किनारों में गांव के रूप में बसने की परंपरा शुरू हुई, तो ये हो रहा है। लेकिन इसमें बेहतर होने की संभावना है। लगातार हर, जैसे कहा जाए कि हर पीढ़ी के लोगों को, एवरी जनरेशन, सभी जनरेशन के लोगों को अवेयर होकर के रहने का और अपने जीवन काल में कुछ नए फ्यूचर जनरेशन के लिए करने का एक दायित्व तो रहता है। उस ढंग से हम यहाँ पहुंचे हैं। आज हम जो कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है। एक तो सस्टेनेबल ग्रोथ निश्चित रूप से सबके लिए होना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ ही फ्यूचर जनरेशन को भी यह आगे बढ़ाता है। तो जो यह ICAR का जो काम है, हॉर्टिकल्चर का इस संस्थान का जो काम है, वो सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी इसलिए कहते हैं कि हमें हर चीज में परिवार की सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। हमारा जो प्रोडक्ट डिफिशियंसी है उसमें सस्टेनेबिलिटी आना चाहिए। हमें ऐसे कई चीजों का जो हम आयात के भरोसे, अभी कुछ दिन पहले हमने माननीय गृह मंत्री के साथ एक पोर्टल लॉन्च किया दाल पल्सेस के लिए, दाल के लिए, कि किसान रजिस्ट्रेशन कराए, ऑनलाइन कराए और उसका पल्सेस हम खास करके तूर के लिए कि उसका हम मार्केट प्राइस से एक हमने फार्मूला बनाया है, उस फार्मूला पर खरीदेंगे। वो इसलिए कि किसान को एश्योर्ड मार्केट भी मिले और साथ ही साथ दाल की जो डेफिशिएंसी है वो हम पूरा कर सके। क्योंकि आज भी कई बार हम सोचते हैं दाल इंपोर्ट करना है, तो इंपोर्ट करके खाने की जो परंपरा है वो हमारी धीरे धीरे घटनी चाहिए। तूर के मामले में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है 2027 के बाद हम तूर इंपोर्ट नहीं करेंगे, दाल का इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सस्टेनेबल बनेंगे, यह हमारा लक्ष्य है। इसी तरीके से हर चीज में मुझे खुशी है कि हम जागरूक होकर के चीजों को कर रहे हैं और आगे बढ़ा रहे हैं और ऐसे चीजों को ध्यान में रख रहे हैं जिससे कमर्शियली हम वायबल भी हो, हाई प्रोडक्शन भी हो, क्वालिटी भी हो, और उन सारे चीजों को ठीक करने के लिए ऐसे संस्थानों के माध्यम से हमें लाभ मिले। और इसलिए प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट भी है हमारे देश के किसानों के प्रति कि हम खुद से इस तरह के सपोर्ट के माध्यम से, सपोर्ट इन द सेंस कि ऐसे संस्था जब सारे चीजों में रिसर्च करके किसानों तक सही चीजें पहुंचाने में सफल हो जाएगी तो उसकी लागत घटेगी, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ उसका आय दुगुना होगा। किसानों के आय दुगुना हो, ये हमारा लक्ष्य है और मुझे खुशी है कि उसी लक्ष्य को लेकर आज यहाँ पर टेक्नोलॉजी सपोर्ट या जो भी इस तरह के चीजें जो एक किसान को, उन्नत किसान को चाहिए, इस तरह के सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए MOU किया गया, एग्रीमेंट हुआ और यहाँ इस क्षेत्र के किसान काफी
बहुत जागरूक हैं, बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। और मैं अभी जब वहाँ नर्सरी में देखने के लिए गया था तो मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे ऐसे वैरायटी और उसके प्रोडक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब देश भर में, जैसे झारखंड जैसे पूर्वी भारत चाहे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सारे राज्यों के लिए भी हमें वहाँ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी भारत सरकार का बहुत ध्यान है। और हमेशा ये कोशिश किया जाता है कि वैसे क्षेत्रों में भी हम समतुल्य ढंग से सारे उत्पादनों को बढ़ा सकें। कुल मिलाकर के खाद्यान्न में हमारी आत्मनिर्भर होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति तभी सोच पाता है जब उन्हें इस बात की चिंता नहीं सताती है कि हम भूखे रहेंगे। उसके सारे विचार जो भी उसके माइंड में आने का है वो फीडिंग के बाद आता है, खाना खाने के बाद आता है। भूखे पेट कोई नहीं सोच पाता है। तो सस्टेनेबिलिटी की बात को हम न केवल अपने लिए बल्कि पूरे देश और पूरे देश के नागरिकों के लिए, मुझे खुशी है कि संस्थान की तकनीकियां आदिवासी बहुल क्षेत्रों में, देखिए मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, संस्थान के लोग जानते भी हैं और शायद कुछ लोग नहीं भी जानते हैं कि भारत सरकार का जो प्लानिंग मॉडल है उसमें ST/SC कंपोनेंट मीन्स क्या है। मैं ट्राइबल अफेयर्स भी देख रहा हूँ और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री भी देख रहा हूँ। तो मैं इसके अलावे भी कल शाम में जब मैं यहाँ प्लेन के लिए आ रहा था एयरपोर्ट से, तो हमारी एक मीटिंग हुई। आप सबको मालूम है भारत सरकार ने एक प्रोग्राम शुरू किया है, प्राइम मिनिस्टर ने हमारे झारखंड से लॉन्च किया PM जनमन। PM जनमन जिसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। देश में 75 PVTG ग्रुप हैं, जिसमें कुछ तमिलनाडु में भी है, कुछ आंध्रा में है, कुछ तेलंगाना में, कुछ महाराष्ट्र में है और उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, बिहार ऐसे स्थानों में PVTG ग्रुप, जो उसमें से कुछ ग्रुप है जो हमसे बहुत दूर है। हम अभी तक कुछ किताबों में पढ़ के या कभी कभी कुछ लोग गए भी होंगे अंडमान निकोबार, तो जारवा के बारे में पढ़ते हैं, जारवा ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन मेनलैंड इंडिया में, हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे ग्रुप है जो थोड़ा सा उससे ऊपर है, लेकिन वैसे लोग अभी भी कंदराओं में, गुफाओं में रहते हैं। उन लोगों के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस 75 साल के बाद PM ने कहा कि हम स्पेशल प्रोग्राम उनके लिए चलाएंगे और PM जनमन योजना 24,000 करोड़ का शुभारंभ किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जितने भी इंटरवेंशंस है, हम जितने भी मौलिक सुविधाओं की बात करते हैं, वो सारी सुविधाएं वहां तक पहुंचना चाहिए। यही पॉलिसी 1970s में ट्राइबल के लिए भी और शेड्यूल कास्ट के लिए भी प्लानिंग कमीशन के एक रिसर्च के माध्यम से जो रिपोर्ट आई उसको ST कंपोनेंट बोलते हैं, STC कंपोनेंट, STC, जिसके माध्यम से फोकस तरीके से उतने पैसा उनके लिए खर्च करना जरूरी है, इसके अलावा जितना अधिक हो सकता है। यानी उसका जो एलोकेशन है, ये परमानेंट एलोकेशन, इतना उस पर खर्चा करना चाहिए। अभी हम लोग सोचते हैं कि उनको दे रहे हैं तो मेहरबानी कर रहे हैं। देयर राइट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशन उनको स्पेशल राइट्स दिया गया, क्योंकि उस समय देखा गया दे आर मोस्ट बैकवर्ड। पर कैरेक्टरिस्टिक तरीके से वो बहुत फॉरवर्ड है, क्योंकि वो अपने कल्चर को इनहेरिट करते हुए वो अपने चीजों को लेकर के आगे बढ़ते हैं।
तो कुछ चीजों में पीछे है, कुछ चीजों में आगे है। जिसमें आगे है उसको बचाना चाहिए और जिसमें पीछे है उसको बढ़ाना चाहिए। ये एसटीसी कंपोनेंट के नाते 1970s में शुरू किया गया कि देश भर में, अब कर्नाटका में क्या पॉपुलेशन है ट्राइबल्स के? ट्राइबल्स के कितने पॉपुलेशन है, परसेंटेज? हाँ, तो उसमें से अभी कुछ ग्रुप को तो जो लोग ये था उसको मैंने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके उसको फिर इंक्लूड किया। जैसे सिद्धि लोग नहीं था इधर, फिर तलवारा नहीं था, ऐसे हाँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने ठीक भी किया। तो ये जो प्रोग्राम अभी शुरू हुआ है, क्योंकि ये अगर प्रोडक्टिविटी के साथ नहीं जुड़ेंगे, ये अगर एम्पावर्ड नहीं होंगे, ये अगर एजुकेशन में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश आगे समस्त नागरिकों के माध्यम से बढ़ता है, सिटीजन्स के माध्यम से बढ़ता है, और उसकी आबादी देश में 10.5 करोड़ है। वो अगर पीछे है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम आगे लाने के लिए उसको ज्यादा ऐसे असिस्टेंस, न केवल किसी साधनों से बल्कि आइडियाज से कैसे हम उसको आगे लेके आ सकते हैं। सपोर्ट से सिर्फ नहीं, बल्कि उनको इन्वायरमेंट कैसे ऐसे बने ताकि उस तरह की चीजों को आगे बढ़े। तो मुझे खुशी है इस क्षेत्र में भी काम आगे बढ़ रहा है। और अभी तो कन्वर्जेंस प्रोग्राम, जिसका मैंने कहा कि कल ही मैंने मीटिंग करके हम यहाँ से आए, और 15 तारीख को 15 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर ऑनलाइन तरीके से 100 प्लेसेस से वो इन कम्युनिटी के साथ बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे और मिलेंगे। और पदाधिकारियों को यह कहा गया है कि यह सारी सुविधाएं उन तक पहुंचा करके आप ये इंश्योर करिए कि हेल्थ वाइज, एजुकेशन वाइज, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट वाइज और अपने स्वरोजगार के दृष्टि से वो कैसे आगे आ सकता है। वो आगे आए, देश आगे आएगा, हम आगे आएंगे, क्योंकि भारत 140 करोड़ आबादी वाला देश है। इसमें हमें सबको मिलकर के काम करना है। और मैं मानता हूं कि आईसीआर के ऐसे संस्थान जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जैसे मुझे मालूम है कि यह संस्थान ने हॉर्टिकल्चर में या पूरे एग्रो सेक्टर में अगर हम देखें तो इसका बहुत अच्छा प्रथम स्थान प्राप्त है इसको। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और संस्थान लगभग 54 बागवानी फसलों पर काम कर रहा है। इसके माध्यम से 300 से अधिक किस्में यहाँ विकसित हुई है, और यहाँ बहुत डेडिकेटेड ऐसे लोग काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र के लोग ही नहीं, देश के समस्त लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। मुझे यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी मैं इतना ही कह सकता हूँ कि बहुत अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बहुत अच्छा के लिए थोड़ा समय ज़्यादा चाहिए। तो अगली बार जब आऊँगा तो आपके साथ ज़्यादा समय दूंगा, और मैं कोशिश करूंगा इसी परिसर में रात्रि विश्राम करने का, तब मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेकिन मैं ये कहूँ कि ये मैं ऐसे आपको कहा, वास्तव में मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके लिए आपका आभारी हूँ। कोशिश ये रहना चाहिए कि हम सब इसी तरीके से आगे बढ़े। और हॉर्टिकल्चर के सेक्टर में हमारा आत्मनिर्भरशीलता जिस तेजी से बढ़ रहा है, और वैसे वैसे ग्रोअर को भी, जो लोग इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, जो खास करके एवोकाडो, ड्रैगन फ्रूट्स और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के बारे में ये बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ पर उत्पादन को सस्टेनेबल बनाएं। इस देश में हमारे देश के कंज्यूमर को ही नहीं,
वर्ल्ड मार्केट को भी हम हॉर्टिकल्चर के माध्यम से कैसे सर्व कर सके, इस लक्ष्य के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for all the motivating words. We are blessed and fortunate to have you here today. Thank you so much for highlighting on the issues of awareness creation to the farmers and to increase the competitiveness in the market to meet the demands of the increasing population, and for focusing on climate resilience agriculture issues, and for focusing on to save the earth for the future generation to achieve the sustainability. Thank you for once again from all of us. I request once again to give big hand to chief guest. I request Dr. PVR Reddy sir, Nodal Officer, PME Cell, IAHR, to extend official vote of thanks. माननीय मंत्री जी, ये हम बहुत भाग्यशाली है कि मंत्री जी ने इतना समय हमारे लिए स्पेंड किया एंड सारे फैसिलिटीज देख लिया, एंड सर फॉर योर इंस्पायरिंग गाइडेंस एंड मोटिवेशन ऑन बिहाफ ऑफ द इंस्टीट्यूट, ऑन बिहाफ ऑफ द डायरेक्टर एंड ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, we sincerely place on record, sir, our gratitude and thank you, sir. And I thank all the invitees, especially ಕಿಸಾನ್ ಬಾಯು ರೈತ ಬಾಂಧವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ತಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇಂದ ಬಂದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹೆಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಿ ಇನ್ವೈಟೀಸ್, ಐ sincerely thank one and all and entrepreneurs who got this MOUs exchange, and especially all the staff members who helped. We got this at very short notice, but still we could make best efforts and arrange. And on behalf of the director, I personally thank each one of you and thank you all. Especially all committee members deserve a big applause. Thank you all. Thank you to you also, sir. देश के अन्नदाताओं को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं. प्लीज राइज फॉर द नेशनल एंथम. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जय धन मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. जय हिंद.